to yet another video of Learning Science with Srishti. So in our last video, we discussed about various kinds of states of matter such as solid, liquid, gases, plasma and Bose-Einstein condensate. We also discussed about the differences between these states. And now in this video, we are going to discuss about the interconversion between these states of matter. Okay, so without any further delay, let's get started with this topic. So, can matter change its state? So how can we say that a matter can change its state? हम कैसे बोल सकते हैं कि एक जो matter है it can get converted into solid, liquid or gases. So the very common example of change in the states of matter is water. Water is available in all the three states. अगर हम अपने कॉमन डे टू डे लाइफ में देखें तो वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस. सो ice is in the solid form and ice is a solid form of water. We can see water is in liquid form and water vapor is the gaseous form of water. So this is an indication that the matter can change its state. So इससे evident हो जाता है कि जितने भी kind of matter होते हैं it can change its state. It can get converted into solid, liquid and gases. Okay, now we are going to discuss about the effect of various parameters on this change of states, that is temperature, pressure, etc. So in this video we are going to start with this effect of change of temperature. Okay, we are going to discuss कि temperature change से क्या effect पड़ता है matter के states पे. Okay, तो सबसे पहले वी आर गोना सी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यानी कि अगर हम किसी मैटर को हीट करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आता है. तो व्हाट हैपन्स टू द मैटर व्हेन वी हीट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बिगिन विद द सॉलिड कि अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है. सो हम जैसे ही किसी भी सॉलिड पार्टिकल को, सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, सपोज वी हैव टेकन आइस, इट इज़ ऑल्सो सॉलिड पार्टिकल. सो क्या होगा, जैसे हम उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे सो जो पार्टिकल के बीच की काइनेटिक एनर्जी होती है, वी नो दैट सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है बिकॉज उसके पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनके पार्टिकल के बीच में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है. तो जैसे ही हम किसी सॉलिड पार्टिकल को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करने लगती है. इट गेट इंक्रीजेस एंड जैसे ही वो इंक्रीज करेगी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, we know that kinetic energy अगर increase हो रही है तो force of attraction will decrease because kinetic energy and force of attraction are inversely proportional to each other. They are inversely proportional to each other because when the kinetic energy will rise, ultimately the force of attraction will decrease. Obviously अगर kinetic energy बढ़ रहा है इसका मतलब कि पार्टिकल के बीच के स्पेसेस बढ़ रहे हैं. अगर पार्टिकल के बीच के स्पेसेस बढ़ रहे हैं इसका मतलब यही है कि पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, वीक हो रहा है. So as we heat the solids, kinetic energy between the particle of solid increases, which decreases the force of attraction between them. So इससे क्या होगा कि the particle will start vibrating and changing their position slowly due to heating particle become free and solid convert into liquid. So क्या होगा अगर हम इसके बाद भी heat supply करते जाएंगे तो ultimately there will be a point कि intermolecular force of attraction क्या हो जाएगा, पार्टिकल के बीच का खत्म हो जाएगा. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से अटैच नहीं रहेंगे, दे विल बी फ्री एंड अल्टीमेटली द सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया एंड द सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. And the very common example of this conversion is the conversion of ice into water. वो आइस का कन्वर्जन जो है वाटर में, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा. जैसे ही हम आइस को रूम टेम्परेचर पे लाते हैं या फिर हीट करते हैं इट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड कन्वर्जन इनटू लिक्विड. नाउ अब हमने ये डिस्कस किया तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं विच वी ऑल्सो नीड टू डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है. सो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे एक सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बन जाता है. यानी कि वो टेम्परेचर जिसपे एक सॉलिड क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे. यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है दैट इज व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग, इट इज जस्ट द प्रेशर exerted
exerted by the weight of atmosphere। यानी कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर के वेट की वजह से प्रेशर लग रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वो टेम्परेचर जिसपे एक सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स में। एंड इसका एग्जाम्पल होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। तो अगर इतना टेम्परेचर हम आइस पे लगाते हैं तो आइस विल मेल्ट इनटू लिक्विड और वाटर, वी कैन से। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? तो जो कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड का लिक्विड में, यानी कि जो प्रोसेस है मेल्टिंग का सॉलिड से लिक्विड में, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। सो इट इज नथिंग बट द प्रोसेस जिसके वजह से क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होता है या फिर मेल्टिंग होता है सॉलिड का। ओके, सो इन द मेल्टिंग प्रोसेस, once a solid reaches its melting point, its temperature does not increase further. So where does all the heat go? देखो, जैसे ही हम लोग किसी सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, और जैसे ही वो सॉलिड पार्टिकल है अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो उसके बाद वो उससे ज़्यादा हीट नहीं होता है, उसका टेम्परेचर उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? उसके बाद का जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आखिर गया कहाँ? तो इसका सिंपल एंड सोवर आंसर ये है कि ऑल द हीट गोज इन ब्रेकिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो जितना भी हीट अब लग रहा है सॉलिड में, वो सारा जो हीट है वो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको तोड़ने में लग रहा है। ओके, सो वेयर डज ऑल द हीट गोज? इट गोज इनटू ब्रेकिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now what is latent heat? The heat energy which is used to break the force of attraction between the particles of matter. So यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया कि अगर जो सॉलिड को हम हीट करते रहते हैं और वो जैसे ही अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज द हीट एनर्जी जो कि अब मिल रही है सॉलिड को, इट गेट कन्वर्टेड इनटू लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट क्या होता है? इट इज दैट हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और वी कैन से द बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। अब ये तो हो गया लेटेंट हीट, यानी कि वो हीट एनर्जी जो कि किसी सॉलिड में छुपा हुआ रहता है, यानी कि उसका टेम्परेचर में वो दिखता नहीं है, वो अल्टीमेटली किस में यूज होता है? ब्रेक करने में यूज होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसके पार्टिकल के बीच में, उसको ब्रेक करने में यूज होता है। इसलिए नाम क्या है? लेटेंट है। लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन, यानी कि हिडन हीट है जो सॉलिड का, उसके टेम्परेचर में वो नहीं दिखता है। ओके, सो ये हीट एनर्जी यूज होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। ना व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? So it is the amount of heat energy required to change 1 kilo of solid into liquid at atmospheric pressure. So latent heat क्या था? Intermolecular force of attraction को break करने के लिए जो energy required है वो था। latent heat of fusion वो energy required है जिससे एक किलो जो solid है उसको हम liquid में convert कर सकते हैं at atmospheric pressure, as simple as that। ठीक है, इस तरीके से आगे भी terms आएंगे, like latent heat of vaporization होगा। So latent heat of vaporization में भी simple हो जाएगा कि वो amount of heat energy जो कि required रहता है 1 लीटर ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो दैट विल बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो एज सिंपल एज दैट, नथिंग डिफरेंट। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन कि जब हम हीट टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आखिर लिक्विड पे क्या इफेक्ट होता है। ओके, सो जैसे कि सॉलिड्स में क्या हो रहा था कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही थी, तो ऑब्वियसली लिक्विड में भी वही होगा कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। हम जैसे ही किसी पार्टिकल को, मैटर को, ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो अल्टीमेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज, बिकॉज एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। सो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज। हम जितना हीट सप्लाई करते जाएंगे अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जिसके बाद क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल के बीच का वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा एंड द लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। क्योंकि हमें पता है गैस में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है या तो वो नेग्लिजिबल होता है। सो जैसे ही हम किसी लिक्विड को हीट करते जा रहे हैं, फर्दर करते जा रहे हैं, तो एक वो पॉइंट आएगा जिसके बाद पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल रह जाएगा एंड दैट पॉइंट पे लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड और गैस की कन्वर्जन की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आएगा। जैसे वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था? सॉलिड और लिक्विड का मेल्टिंग हो रहा था तो मेल्टिंग पॉइंट आया था। यहाँ पे लिक्विड और गैस का कन्वर्जन हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है लिक्विड का गैस में, तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा। सो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। लाइक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। वी शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 273 केल्विन है एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वहाँ पे क्या था, 1 किलो ऑफ सॉलिड जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। तो उसके लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड था, दैट वाज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ यहाँ पे 1 लीटर ऑफ लिक्विड, सॉरी लिक्विड कैन नेवर बी मेजर्ड इन किलोग्राम, दैट इज माय मिस्टेक, इट विल बी लीटर। सो 1 लीटर ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एज सिंपल एज दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा। What happens when we decrease the temperature? टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करते थे क्या होगा। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारे काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल के बीच में थी वो इंक्रीज हो रही थी ऑब्वियसली। एंड अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के बीच की क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर कोई सपोज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, अगर उसको हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं उसका, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी उसके बीच के जो पार्टिकल्स की होगी वो क्या होगी, कम होगी। एंड अल्टीमेटली जो है इट विल टर्न इनटू द लिक्विड स्टेट। क्या होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होगा। क्यों होगा, बिकॉज उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो काइनेटिक एनर्जी है एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। सो इफ द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, अल्टीमेटली द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विल increase. So the kinetic energy between the particle decreases and they turn into liquid state. Why? Because the intermolecular force of attraction between them will increase. Okay. सो दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिससे एक गैस को हम लोग लिक्विड के में कन्वर्ट करते हैं बाय कूलिंग डाउन और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय कूलिंग डाउन और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। एंड कंडेंसेशन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है क्लाउड्स का फॉर्मेशन। क्लाउड्स का फॉर्मेशन क्या है, इट इज़ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। पहले क्या है, गैस के फॉर्म में रहता है ना, इट इज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है। एयर, तो एयर इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड इट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और क्लाउड्स, क्लाउड के फॉर्मेशन में हो जाता है, फिर रेन होता है। ओके, रेन होता है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, उसमें क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ऑब्वियसली द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्लाउड विच विल अल्टीमेटली रेन एंड फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ओके, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। ना लिक्विड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो, सो ऑब्वियसली अगर हम हीट कर रहे थे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था। अगर आप टेम्परेचर को कूल डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगा, पार्टिकल के बीच का डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड लिक्विड अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आइस का फॉर्मेशन, जो हम बर्फ जमाते हैं अपने घर में नॉर्मल, सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है। आई थिंक हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हम जो आइस का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ वी कैन से सॉलिडिफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि लिक्विड में सॉलिड का लिक्विड से सॉलिड का फॉर्मेशन है, दैट इज द सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। ना सब्लिमेशन क्या होता है, ये आपको न्यू टर्म लग रहा होगा, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन है डायरेक्ट कन्वर्जन का गैस से सॉलिड में या फिर सॉलिड से गैस में। सो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैसियस सब्सटेंस, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर इनटू सॉलिड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैस इज सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम कैम्फर ले, कपूर ले, तो ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होकर एयर में उड़ जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको एयर टाइट डब्बे में रखते हैं ना, ताकि ये एयर में इवेपोरेट ना हो जाए। वी नो कपूर जो है हम लोग जो वी यूजुअली यूज़ इन आवर पूजाज, ठीक है, तो हम लोग उसको एक एयर टाइट डब्बे में रखते हैं ताकि वो इवेपोरेट होकर एयर में उड़ ना जाए। ठीक है, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस, कि किस तरीके से एक सॉलिड सब्सटेंस जो है वो अल्टीमेटली डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इट गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। ओके, सो अब ये सब तो हमने देख लिया, इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। सो आई होप दिस चार्ट इज विजिबल टू यू गाइज।
सो इस चार्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले ये क्या है, आइस है। तो आइस क्या होता है, इट इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर। ये क्या है, वाटर है, लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर है। एंड ये क्या है, क्लाउड्स है, यानी कि गैसेस फॉर्म ऑफ मैटर है। तो सबसे पहले जो अगर सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, इट इज़ नोन एज मेल्टिंग और लिक्विफिकेशन। व्हाट इट इज़ नोन एज, इट इज़ नोन एज मेल्टिंग और लिक्विफिकेशन। और अगर लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है, इट इज़ नोन एज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, इट इज़ नोन एज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। अगर हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, ये हमने अभी पढ़ा है कि अगर हम सॉलिड को गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सो इट इज़ नोन एज सबलिमेशन। इट इज़ नोन एज सबलिमेशन एंड द एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ कैम्फर। और अगर लिक्विड जो है वो क्लाउड में या फिर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सो इट इज़ नोन एज इवेपोरेशन। इट इज़ नोन एज इवेपोरेशन। एंड अगर गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वापस से, देन इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन, एज सिंपल एज दैट। सो व्हाट आर द टर्म्स, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब क्या है, लिक्विड से का सॉलिड में कन्वर्जन। मेल्टिंग, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन। इवापोरेशन, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन। कंडेंसेशन, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन। एंड देन गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्जन एंड और सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइज। आज हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस लेक्चर रियली वेल। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया और सब कुछ अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। आई रियली नीड योर support guys. Okay, so this was all about today's lecture, and if you have not watched the other 2 lectures of matter in our surrounding, then I'll add the links in the description box. Go and watch it out as well. Okay, bye bye, see you in the next video.